the rural marketing mix. Anyone have any doubt in rural marketing mix? रूरल मार्केटिंग मिक्स में किसी को डाउट है? जो 4 P's हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द CSR प्रोजेक्ट अगेन. The CSR project start created by the different companies, different private companies. We are going to complete that particular topic, right? And before that, I just want to clear every doubt. Anyone have any doubt in rural marketing mix? Product, price, place, promotion? No, ma'am. Okay. So who is going to tell me about completing the CSR project? We are going to discuss some MCQs. We can say that कुछ MCQs हम करेंगे आज, ठीक है? Okay. Yes. Product is manufactured by the company, and it was a significant product strategy, innovation, competitive, and make better use of resources. And the types of product is user, just like consumer and manufacturer, two are different. And innovation means one is imitative and other is original. Two types of innovation. Imitative means some changes, and original means some same to same. Imitation means when we are copying and when we are taking ideas of the other company. Yes. Function of the product. Some long-term product and short-term product. Just like agriculture product is a perishable goods. It's a short-term product, and long-term product it's a just like furniture and computer are the long-term product. Tangible, intangible or tangible. Intangible means you don't see the product and feel its product. And tangible means we touch this product just like computer and etc. And intangibles is goodwill, patent, and product mix. Two types of total product concept is actual concept, core concept, actual concept, argumental concept. The core concept. Augmented concept. Augmented concept. Core concept. Basic use of product. Just like we make a phone and it was called, then it's called basic use of product. In rural case, in rural marketing, there was a product which has heterogeneous product, which are different from the different types of product, and low cost of product which is used by the rural consumer because some simple product are used by the rural consumer also. It's and some of the example is HUL and ITC was make simple product and less costlier product. Okay, ठीक है. Okay, बताइए फटाफट. A place is a distribution of product from manufacturer to the consumer. It's divided into various steps. There are few points related to that is 0 degree product. CSR project. What is the CSR project? CSR project क्या है? Basically corporate social responsibilities के कुछ basically projects थे जो अलग अलग companies के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, जिसमें से हमने ITC और महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था. ITC में हमने क्या, महिंद्रा एंड महिंद्रा, there was one program IWMP, that is integrated watershed management program, right? That was started by the initiative. That initiative is taken by Madhya Pradesh government, NABARD, ठीक है, and as well as with महिंद्रा एंड महिंद्रा. तो यहाँ 2-3 जो बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एंड प्राइवेट ने मिल करके इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था, राइट? हरियाली जो था, हरियाली इनिशिएटिव लिया गया था बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा, जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा प्लांटेशन किया था, राइट? एंड इसी में मैं आगे अब आपको
हीरो मोटोकॉर्प और बाकी और HDFC बैंक, उन्होंने क्या बेसिकली प्रोजेक्ट और CSR इनिशिएटिव लिया, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं फिर से शुरू करती हूँ एक बार ITC से ही। तो ITC में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था द प्रोग्राम मिशन सुनहरा कल, MSK, मिशन सुनहरा कल। इसका बेसिकली एम क्या था, व्हाट वाज इट्स एम? एम था बेसिकली वाटर प्रिजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन, ठीक है। साथ साथ में और भी चीजें इन्होंने किया था, जैसे विमेन एम्पावरमेंट पे, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट पे, प्राइमरी एजुकेशन पे, साथ साथ में स्किलिंग इन इंडिया, फ्यूचर स्किलिंग इन इंडिया पे। मतलब ये 3-4 चीजें इनका जो था बेसिकली गोल था, किस कहाँ पर, रूरल एरियाज में बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर ये तो ITC का था सुनहरा कल। और ई चौपाल और ई सागर, आई गेस सब लोगों को पता होगा ई चौपाल और ई सागर क्या है, ठीक है। ई सागर रूरल मॉल एंड ई चौपाल इज अ, ई चौपाल क्या है? ई चौपाल virtual Chopal is meeting. just to बिल्कुल वर्चुअल, आगे बोलिए। meeting from एग्जैक्टली to the farmer. हाँ, वर्चुअल मीटिंग्स, और बोल सकते हैं कि वर्चुअल फैसिलिटीज वाज गिवन एंड सो मेनी कियोस्क वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन द different areas, right? So e-Chopal and e-Sagar, so we have idea that initiative started by the ITC, right? The second one, Mahindra and Mahindra जो उन्होंने प्रोग्राम क्या स्टार्ट किया था, CSR प्रोग्राम इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने IWMP के नाम से, बेसिकली इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाम से उन्होंने क्या शुरू किया, बेसिकली CSR प्रोजेक्ट को शुरू किया। ये प्रोजेक्ट को चलाने के लिए उन्होंने और किसको और कौन इनके पार्टनर्स बने, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आपके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, बिकॉज ये जो इनिशिएटिव था इसको लिया गया था मध्य प्रदेश में, और साथ साथ में नाबार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3-4 जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन थे और कंपनी जो थी पब्लिक एंड प्राइवेट, उन्होंने मिलकर के इस प्रोग्राम को क्या किया, रन किया, ठीक है। और इसका बेसिकली मेन एम क्या था, इस प्रोग्राम का मेन एम क्या था, बेसिकली जो ग्राउंड लेवल वाटर को मेंटेन करना, ठीक है। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इरिगेशन, बट वी कैन नॉट डिपेंडेंट ऑन वी आर, मतलब वहां पर ज्यादातर क्या, इरिगेशन के लिए बहुत लोगों के पास पंप एंड अदर फैसिलिटीज आर अवेलेबल, बट सो मेनी पीपल इन द रूरल एरियाज आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द बेसिकली रेनफॉल, राइट। तो बेसिकली उसको कैसे मेंटेन करें, कैसे उनको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड हो उन रेनफॉल वाटर से, तो इसके लिए ये प्रोग्राम को शुरू किया गया, ठीक है। और ये कहाँ पर शुरू किया, इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द 48 विलेजेस में इनको शुरू किया गया। 48 विलेजेस में से 35 विलेजेस जो थे वो भोपाल में थे और 13 विलेजेस जो थे वो हट्टा में थे। तो लाइक दीज ऑल विलेजेस आर लोकेटेड इन वन स्टेट, दैट इज मध्य प्रदेश, राइट। और इसका जो बेसिकली मेन, ये इस प्रोजेक्ट ने क्या किया, मतलब इस प्रोजेक्ट का क्या बेसिकली इसने किस तरीके से इफेक्ट किया, तो ये बहुत पॉजिटिवली इसने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया और साथ साथ में वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड भी लोगों का इम्प्रूव किया, ठीक है। इरिगेशन प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हुआ और साथ साथ में वहां पर इससे कितनों को बेनिफिट हुआ, लगभग 35,000 पीपल आर गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मतलब 35,000 लगभग लोग जो है इस प्रोजेक्ट से उनको क्या मिला, बेनिफिट मिला उनको, ठीक है। साथ साथ में एक और महिंद्रा ने एक और इनिशिएटिव लिया, महिंद्रा हरियाली जो है, गाँव महिंद्रा हरियाली, ठीक है, हरियाली प्रोजेक्ट, जो महिंद्रा ने लगभग 1.52 मिलियन, मतलब लाख में उन्होंने बिल्कुल सोचो कि ट्रीज जो था प्लांट किया। क्यों किया, बिकॉज दे वांट टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे जगह क्या किया, प्लांटेशन किया, राइट। और साथ साथ में प्लांटेशन के अलावा और भी क्या चीजें थी इसमें, डिसाइड द ग्रीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट की ग्रीनिंग के बारे में सोचते हुए, इसके अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अ लाइवलीहुड सपोर्ट टू द ट्राइबल फार्मर्स, मतलब इन्होंने ट्राइबल फार्मर्स को भी बेसिकली क्या किया, ट्राइबल फार्मर्स को भी उन्होंने बेनिफिट दिया, ठीक है। और इन्होंने उनको हेल्प किया किस चीज में, ट्राइबल फार्मर्स को, ताकि वो बेसिकली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करें जो वो मार्केट में सेल करे और उनकी लिवलीहुड, उनका जो इनकम हो कहीं से। तो उन्होंने उनको कॉफी एंड साथ साथ में फ्रूट बेयर जो होते हैं उसको प्लांटेशन में उन्होंने हेल्प किया, ताकि कल फ्रूट्स हो तो दे कैन सेल दोस फ्रूट इन द मार्केट, कॉफी को दे कैन सेल इन द मार्केट। So this Haryali project also basically contributed toward the tribal farmers,
ठीक है, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर ट्राइबल फार्मर्स। ठीक है, उसके अलावा और भी एक दो प्रोजेक्ट थे, उसको भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि वर्धा फार्मर फैमिली प्रोजेक्ट था एक, वर्धा फार्मर फैमिली प्रोजेक्ट, वर्धा WARDHA, वर्धा फार्मर फैमिली प्रोजेक्ट, वर्धा फार्मर फैमिली प्रोजेक्ट एंड कृषि मित्रा प्रोजेक्ट एंड वर्धा फार्मर फैमिली प्रोजेक्ट। ठीक है, वर्धा फार्मर फैमिली प्रोजेक्ट एंड कृषि मित्रा प्रोजेक्ट, ये क्या था इसके बारे में बताऊंगी। आप लोगों ने लिख लिया इसका नाम, वर्धा फार्मर फैमिली एंड कृषि मित्रा प्रोजेक्ट, सब लोगों ने लिख लिया इसको, एवरीवन? ठीक है, तो वर्धा फैमिली प्रोजेक्ट, वर्धा फार्मर फैमिली प्रोजेक्ट एंड कृषि मित्रा प्रोजेक्ट जो था, इसको शुरू करने का मेन एम क्या था महिंद्रा एंड महिंद्रा का? दे वांट टू सपोर्ट द स्मॉल फार्मर। एवरीवन नोज कि स्मॉल फार्मर और लार्ज फार्मर का क्या डिफरेंस है। लार्ज फार्मर्स दे हैव लैंड, दे हैव प्रॉपर क्रॉपिंग फैसिलिटीज, राइट, एंड द स्मॉल फार्मर्स हु आर बेसिकली वर्किंग एज अ, मतलब रेंटेड लैंड में कुछ काम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल फार्मर्स का जो सिचुएशन है कंपैरेटिवली टू फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स, बहुत ही वर्स्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट को लाया गया, ये बेसिकली किसको एम करते हुए लाया गया? स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, तो यहाँ पर वो सपोर्ट करते थे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। ठीक है, और उनको क्या बेसिकली प्रोवाइड किया गया इन दोनों प्रोजेक्ट में? उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज दी गई। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह दिया गया कि आप कैसे इफेक्टिव फार्मिंग कर सकते हैं, हाउ यू कैन डू द इफेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, सॉइल के हेल्थ के बारे में उनको बताया गया, क्रॉप की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बताया गया, फिर मॉडल फार्म्स वगैरह, मतलब जो भी न्यू टेक्निक्स लाए गए हैं फार्मिंग में। ठीक है, क्रॉप से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग इज गिवन टू पर्टिकुलर स्मॉल फार्मर्स, ताकि वो कोई इफेक्टिव चीज कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, राइट। तो ये बेसिकली इसमें सिखाया गया, और साथ साथ में एक चीज और बताया गया कि कैसे आप वाटर टेबल वगैरह को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वर्धा फार्मर फैमिली प्रोजेक्ट था और कृषि मित्रा प्रोजेक्ट जो था, ये जो दोनों प्रोजेक्ट महिंद्रा के द्वारा शुरू किया गया, इस प्रोजेक्ट को किसको एम करते हुए शुरू किया गया? स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स। वैसे फार्मर्स जिनको पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, लैंड नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इनको क्या दिया गया? इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया, इनको इंफॉर्मेशन दिया गया, इनके स्किल को डेवलप किया गया। साथ साथ में और क्या क्या चीजें हुई, जैसे उनको बताया गया कि आप कैसे वाटर टेबल वगैरह को मेंटेन कर सकते हो, आप प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो दिस वाज बेसिकली प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर 2 प्रोजेक्ट, राइट। देन ये 2 प्रोजेक्ट और एक हरियाली प्रोजेक्ट और एक और प्रोजेक्ट था IWMP। ये चारों प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा, सबको क्लियर हो गया? एवरीवन, सबको समझ में आ गया? यस और नो? सबको क्लियर हो गया? एवरीवन Yes, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अगर क्लियर हो गया तो रेज कीजिए हैंड सारे बच्चे। ओके, ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। HDFC बैंक। HDFC बैंक, अच्छा सारे लोग जानते हैं HDFC बैंक के बारे में। वो अभी इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है। इवन ICICI को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया और अभी HDFC सबसे आगे है। पब्लिक में सबसे पहला आपका SBI है, एंड अगर पूरा ओवरऑल पब्लिक प्राइवेट को देखें तो फर्स्ट में HDFC, सेकंड में SBI एंड थर्ड में ICICI। तो HDFC बैंक एक रिनाउंड प्राइवेट बैंक है, राइट। साथ साथ में उसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो बीइंग अ रिनाउंड बैंक, ठीक है, उसका एक कॉर्पोरेट, वो एक अकाउंटेबल है फॉर CSR ऑब्वियसली। तो उन्होंने भी कुछ प्रोग्राम को शुरू किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक CSR अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब CSR अम्ब्रेला प्रोजेक्ट को, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को उन्होंने बेसिकली परिवर्तन नाम का उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। ठीक है, परिवर्तन। और ये जो एक प्रोग्राम था, इन्होंने एक होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, और इस
ये किसके अंडर में किया, परिवर्तन, वो एक परिवर्तन नाम से वो एक प्रोग्राम लेकर आए, परिवर्तन, ठीक है। उनके प्रोजेक्ट का नाम क्या था, परिवर्तन। याद रखिएगा कि HPSC का जो प्रोग्राम था दैट इज परिवर्तन, ओके। एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, या कह सकते हैं हॉलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ठीक है। इसमें क्या चीजों को देखा गया, ये माना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में आज भी पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज का है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर रूरल एरियाज का पॉपुलेशन हाई है तो कहीं ना कहीं इंडिया का डेवलपमेंट जो है वो रूरल डेवलपमेंट के साथ लिंक्ड है, राइट, लिंक्ड है या नहीं। अगर रूरल एरियाज में डेवलपमेंट होगा तो इंडिया डेवलपिंग से हो सकता है जल्दी डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो यही चीज मानना किसका था, बेसिकली इस प्रोग्राम में यही चीज को देखा गया कि रूरल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। So it was developed with the belief that the rural development is the central and significant for the nation's economic development. यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है रूरल डेवलपमेंट। जो रूरल पॉपुलेशन है दे आर बेसिकली इंगेज इन एग्रीकल्चर, राइट, ठीक है। वो सारा पूरा डिपेंडेंट किस चीज पे है, एग्रीकल्चर पे, एंड वो वाटर इरिगेशन के लिए सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किस पे है, रेनफॉल पे। तो ये जो प्रोग्राम था, ये जो प्रोग्राम आया, परिवर्तन जो लाया गया, इसका बेसिकली ये था एम कि हम हर एक विलेज में ये देखेंगे कि वहां के क्रिटिकल इश्यूज क्या क्या हैं। जैसे किसी स्टेट मतलब किसी भी पर्टिकुलर विलेज या फिर रूरल एरियाज में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, वहां पर रोड्स की प्रॉब्लम, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, इरिगेशन फैसिलिटीज की प्रॉब्लम, एजुकेशन की प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बहुत सारे रूरल एरियाज में प्रॉब्लम थे और अलग अलग एरियाज में अलग अलग रीजन थे, क्रिटिकल इश्यूज अलग अलग थे। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम था इट वाज आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस द क्रिटिकल नीड ऑफ ईच विलेज एंड अडॉप्ट एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। यानी जहां पर बहुत ज्यादा इश्यूज थे, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी, जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करना था जिस चीज का, उस चीज को बेसिकली उन्होंने अडॉप्ट किया, उस इश्यू को या उस नीड को बेसिकली उस जरूरत को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया कि भाई हमें यहाँ पर पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना है, हमें यहाँ पर स्कूल्स देखने हैं, राइट। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में अलग अलग विलेजेस के या अलग अलग रूरल एरियाज के इश्यूज को क्या किया गया, कंसिडर किया गया, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कंसल्टेशंस वगैरह प्रोग्राम, कंसल्टेशंस के लिए इन्होंने कुछ डिजाइनिंग किया, जैसे मल्टीपल इंटरवेंशन डिजाइन इन कंसल्टेशन, मतलब बहुत सारे कंसल्टेशन किया गया, मतलब कंसल्टेंसी वाला काम किया गया। आप जगह जगह पे जाकर लोगों से पूछ रहे थे, कंसल्ट कर रहे थे, कौन किन लोगों से, विलेज कम्युनिटी के लोगों से, यानी जो विलेज एरियाज में रह रहे हैं उनसे जाकर कंसल्ट किया जाता था, उनसे प्रॉब्लम पूछा जाता था, ये प्रॉब्लम कब से है और इस चीज की जरूरत क्यों है, क्या है, मतलब एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड कंसल्टेंसी वाज डन अंडर दिस प्रोग्राम, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव था, दिस इनिशिएटिव इज आल्सो लाइंड अप, मतलब ये इनिशिएटिव को लाइंड अप कर दिया गया एक और प्रोग्राम के साथ, आदर्श गांव अभियान। यानी आदर्श गांव अभियान जो था ये गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम था, तो उसी प्रोग्राम के साथ ये वाले प्रोग्राम को भी एक तरीके से पैरेलल वे में लेकर चलना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी ये जो दो प्रोग्राम थे, दोनों का एम क्या था, डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया, तो दोनों प्रोग्राम साथ में एक तरीके से आ गई, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव जो थे इसको आर इन लाइन विद आदर्श गांव अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। जो क्रिटिकल नीड्स जो बेसिकली थे चूजन विलेजेस के, यानी कि जिस गांव में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, जहां पर सबसे ज्यादा जरूरी चीजों की कमी थी या जो चीज को फुलफिल करना सबसे ज्यादा जरूरी था इन शॉर्ट, तो ऐसे केसेस को पहले आइडेंटिफाई किया, फिर कंसल्ट किया गया, ठीक है, विलेज से, एंड फिर इस इनिशिएटिव के लिए इनके नीड्स एंड ओपननेस वगैरह जो भी नीड्स वगैरह को डिटरमाइन किया गया, और साथ साथ में ये जो प्रोग्राम था बेसिकली मॉनिटर करता था परफॉर्मेंस और इनकंसिस्टेंसी, अगर कोई भी प्रोग्राम वगैरह में जो भी चीजें हैं उसको भी, और साथ साथ में कुछ फंड्स वगैरह भी ये प्रोग्राम के अंडर में रेज किया गया। फंड मतलब कंपनी ने फंड वगैरह रेज किया फॉर प्रोवाइडिंग द बेसिकली नीड जो है ना, फुलफिल नीड को फुलफिल करने के लिए, विलेज एरियाज में जो प्रॉब्लम उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए फंड्स वगैरह रेज किया। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम था, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम विच बेसिकली एम आउट द रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कंसल्ट करना, क्या क्रिटिकल नीड्स है, कौन से विलेजेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कंसिडर करना और उनको सॉल्व करना, ये बेसिकली एम था इस पर्टिकुलर
किसका इनिशिएटिव था, और इस इनिशिएटिव का नाम है परिवर्तन यानी चेंजेस। और इसको बाद में लाइन अप कर दिया गया किसके साथ, बेसिकली आदर्श गांव अभियान जो है आपका, जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, उसके साथ इसको क्या कर दिया गया, एक तरीके से लाइन अप कर दिया गया, क्योंकि दोनों बेसिकली जो इनिशिएटिव था दोनों का एम लगभग सेम था। और यहाँ पर जो भी विलेजेस थे जिनमें सबसे ज्यादा क्रिटिकल इश्यूज वगैरह थे उनको लाइन अप किया गया, मतलब कि जैसे इस फर्स्ट विलेज इसका पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर इसका मतलब अकॉर्डिंग टू नीड, जिनकी नीड सबसे ज्यादा जरूरी थी उसको लाइन अप कर दिया गया और उसको धीरे धीरे सॉल्व करते चले गए ये दोनों प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर जो फंड्स वगैरह थी वो भी प्रोवाइड कौन कर रहा था, बेसिकली आपका HDFC बैंक, यानी जो पैसे वगैरह और जो भी चीजों के लिए जरूरत था उसमें उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया गवर्नमेंट को, ताकि जो ये दोनों प्रोग्राम है वो मिलकर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। So this is the program that was started by the HDFC and this is the initiative taken by HDFC. Anyone have any doubt in this? किसी को कुछ पूछना है जो समझ नहीं आया इसमें? क्लियर हो गया? Raise your hand. Clear? Okay. Next, Hero Motocorp. Hero Motocorp. Hero Motocorp. हीरो मोटोकॉर्प का नाम सबने सुना है, पहले क्या था वो? Earlier it was साइकिल सेपरेटेड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हीरो मोटोकॉर्प में, ठीक है। तो हीरो मोटोकॉर्प जो है उन्होंने भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया रूरल डेवलपमेंट के लिए, फ्रेंडली अप्रोच था बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, द रीजन्स वेयर द CSR प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड जो थे वो हीरो वी केयर के नाम से उन्होंने ये प्रोग्राम को शुरू किया, ठीक है। हीरो वी केयर मतलब हीरो और इन्वर्टेड कॉमा में वी केयर, ठीक है। एक फ्रेंडली अप्रोच था हीरो की तरफ से, हीरो कंपनी की तरफ से, किसके लिए? रूरल एरियाज के लिए। जहां रीजन जो था जहां पर CSR प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है, ये एक ऑपरेशनल एरिया था कंपनी का जहां पर प्लांट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे। मतलब प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का मतलब जहां पर बेसिकली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हीरो वी केयर जो था उसका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या था, उन्होंने पॉजिटिव इन्फ्लुएंस किस चीज पे बेसिकली किस चीज पे इन्होंने फोकस किया? हेल्थ केयर पे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे एक्सेस ऑफ पावर एंड वाटर। यानी हीरो वी केयर के नाम से जो इनिशिएटिव को शुरू किया गया, इसका जो बेसिकली जहां पर उन विलेजेस या फिर उन रूरल एरियाज या फिर उस टाइप से, मतलब कह सकते हैं ना कि जैसे कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट वगैरह है, उधर के आसपास के जो भी गांव वगैरह भी है रूरल एरियाज, उनको उन्होंने चूज किया, यानी कि जहां पर उनके प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे उस एरियाज को बेसिकली उन्होंने चूज किया एज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम हीरो वी केयर। तो हीरो वी केयर का जो बेसिकली पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या था, यानी फिर इनका फोकस किस चीज पे था? दे फोकस्ड ऑन हेल्थ पे फोकस किया, वाटर पे एंड पावर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस किया। इसका जो CSR डिपार्टमेंट था हीरो वी केयर का, बेसिकली इन्होंने इम्प्लीमेंट किया विद पार्टनर्स एजेंसीज के साथ उन्होंने प्रोग्राम को शुरू किया। और साथ साथ में उन्होंने एक और चीज पे फोकस किया, दैट रूरल वुमेन जो होंगी वो सेल्फ रिलायंस, उनके एम्पावरमेंट पे भी उन्होंने फोकस किया, ठीक है। और एक और चीज उन्होंने मतलब मोटिवेट किया फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, encourage for the entrepreneurship. So what kind of things basically they did in this particular hero we care, that they basically focused on the rural areas where the plants and manufacturing units of hero was basically there, or they considered those areas, and basically they focused on the health, power and women empowerment, entrepreneurship, all kind of things. इससे उन्होंने क्या किया, बेसिकली फोकस किया। साथ साथ इन सब के अलावा उन्होंने कुछ बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड किया, ठीक है, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मेडिसिन, प्रॉपर हॉस्पिटल्स, कंसल्टेंसी वगैरह जो चीजें होती हैं उन सब के लिए बेसिकली कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड किया। स्कूल वगैरह की फैसिलिटीज भी दिया उन्होंने, मतलब स्कूल्स वगैरह ओपन करवाना। एंड कंपनी जो है वो ऑल्सो कुछ उन्होंने और भी चीजें काम किया, जैसे उन्होंने सेल्फ सस्टेनेबल पे, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब पे उन्होंने बेसिकली काम किया, ठीक है।
कुछ मेजर इंटरवेंशन क्या थे, जैसे रीबिल्डिंग कर दिया उन्होंने पब्लिक हेल्थ के सेंटर्स को। आप लोग को पता होगा पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो है वो हर एक गांव में लगभग प्रेजेंट है। पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पता है आप लोगों को? पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के बारे में सुना है आप लोगों ने? तो ये एक छोटे से हॉस्पिटल की तरह होता है। इसमें मेजर फैसिलिटीज तो नहीं होती है, बट जैसे काम चलने वाले जो मेडिसिन और इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्लड सैंपलिंग, ये सब चीजें हो जाती है यहाँ पर। तो वहाँ बहुत सारे गांवों में जो सिचुएशन था दैट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, हीरो वी केयर था, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी काम किया और बहुत सारे स्कूल्स वगैरह की मरम्मत कराना, उनको रिनोवेट कराना, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को रिनोवेट कराना, ये सब भी इन्होंने क्या किया, काम किया इसी के अंडर में, हीरो वी केयर के अंडर में। ठीक है, और साथ साथ में उन्होंने पंप्स वगैरह लगवाए, वाटर पंप, हैंड पंप नहीं होते, चापाकल जिसको हम कहते हैं, तो हैंड पंप्स लगवाए उन्होंने, वाटर फिल्टर्स वगैरह लगाया जहां जरूरत था, रोड्स वगैरह बनवाया, और साथ साथ में एनिमल चेकअप कैंप्स भी लगवाए, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरियाज में लाइव स्टॉक होते हैं, जैसे हमारे काउ, बुफेलो, कैटल्स वगैरह होते हैं, राइट? तो उनके लिए हेल्थ कैंपेन, हेल्थ चेकअप कैंपेन वगैरह भी उन्होंने लगवाया। ठीक है, ताकि जो फार्मर्स, और उन्होंने एक और चीज करवाया, वर्कशॉप वगैरह भी करवाया उन्होंने, ताकि फार्मर्स जो है वो बेटर क्रॉप प्रोडक्शन कर पाए। तो लगभग इन्होंने हर एक एरिया को बेसिकली कवर कर लिया, स्कूल, रोड, पावर, वाटर, हेल्थ जो भी सेंटर्स हैं उनको रिनोवेट कराना, स्कूल्स को रिनोवेट कराना, साथ साथ में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स वगैरह बनवाना, वर्कशॉप कंडक्ट करवाना फॉर द फार्मर्स, ट्रेनिंग वगैरह उनको प्रोवाइड करना, एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करना, वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान देना। साथ साथ में एक और चीज उन्होंने क्या कह रहा है कि एनिमल चेकअप कैंपेन वगैरह लगाया। तो लगभग इन्होंने हर एक एरियाज को लगभग कवर कर लिया जो रूरल एरियाज में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये था बेसिकली हीरो वी केयर, जो इनिशिएटिव लिया गया हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा, CSR प्रोग्राम जो लिया गया, उसके कुछ बेनिफिट्स और उनके कुछ वर्क। नेक्स्ट आते हैं हम टाटा ग्रुप के तरफ। टाटा ग्रुप, और दिस वन इज द लास्ट CSR प्रोजेक्ट। तो टाटा ग्रुप जो आप लोग को नाम से पता होगा कि टाटा जो है वो बहुत सारी, टाटा ग्रुप के अंडर में बहुत सारी कंपनीज आती हैं, चाहे वो टाटा कंसल्टेंसी हो, चाहे वो आपका टाटा क्लिक हो, चाहे वो आपका टाटा मोटर्स हो, चाहे वो आपका और भी बहुत सारे उसके बेसिकली क्या है कंपनीज हैं टाटा के। तो टाटा जो है उन्होंने क्या चीज लेकर आए, वो क्या इनिशिएटिव लेकर आए, तो वो एक प्रोग्राम लेकर आए, TRI, ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया। ठीक है, ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा इस इनिशिएटिव को लिया गया और इसमें लार्ज स्केल में ट्रांसफॉर्मेशन किया गया विलेजेस का। ठीक है, और खासकर उन एरियाज का जहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी है। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ एरियाज में जहां एक्सट्रीम पॉवर्टी है। ठीक है, आपके रूरल एरियाज में उन पे इन्होंने फोकस किया। मतलब इनका जो मेन एम था, नाम ही बता रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया। तो ये इन्होंने लगभग 10,000 विलेजेस, 1,000 ब्लॉक्स वगैरह को कवर किया इन्होंने। तो लगभग 200 मिलियन लोगों की जिंदगी सुधार दी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, TRI। CSR जो प्रोग्राम था ये बेसिकली इन्होंने बहुत सारी चीजों पे और भी ध्यान दिया, हेल्थ एंड न्यूट्रिशियस फोकस, न्यूट्रिशंस वगैरह पे भी ध्यान दिया, मतलब हेल्थ पे ध्यान दिया। और लगभग मध्य प्रदेश के लगभग 342 विलेजेस के अराउंड इन्होंने कवर किया। 710 इनके कम्युनिटी वॉलेंटियर्स पे कहते हैं, मतलब वॉलेंटियर्स के थ्रू इन्होंने इस इनिशिएटिव को बेसिकली क्या क्या आगे बढ़ाया, रन करवाया। और इन्होंने कुछ ट्रेनिंग भी वगैरह भी दिया, जैसे इन्होंने लगभग 2070 वुमेन ग्रुप्स बनाए, उनको बेसिकली ट्रेनिंग दिया गया, वहां पर इनिशिएट किया गया डिस्कशन, ट्रेनिंग वगैरह देना। ठीक है, और साथ साथ में इन्होंने यहाँ पर कुछ स्कूल मैनेजमेंट वगैरह बनवाया ताकि स्कूल वगैरह में डेवलपमेंट हो। ठीक है, इन्होंने और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ टीचर्स वगैरह फैसिलिटेट कराए, जो जो स्कूल्स में वहां पर टीचर्स नहीं थे आपके रूरल एरियाज में, वहाँ टीचर्स वगैरह को लगवाया। ठीक है, तो ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया में बेसिकली आपके टाटा ग्रुप का ये इनिशिएटिव था। साथ साथ में उन्होंने एक और इनिशिएटिव को अडॉप्ट किया था और वो इनिशिएटिव क्या था आपका, कौशल किसान अभियान। कौशल किसान जो अभियान था
ये एग्रीकल्चरल एरियाज मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए था, ठीक है। और इसमें ज्यादातर झारखंड के एरियाज को अडॉप्ट किया गया था, मतलब झारखंड में लगभग इन्होंने 7,000 फार्मर्स को इसके अंडर में हेल्प किया, ठीक है। और लगभग इसमें मतलब इनकम वगैरह कैसे आप इंक्रीज करेंगे, फार्मर्स अपना किस तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, तो उसके लिए कौन किसान अभियान था, और इसमें झारखंड एरिया को सबसे ज्यादा इन्होंने कवर किया, ठीक है। उसके बाद जो TRI के अंडर में ही एक और प्रोग्राम आया सारथी। अब ये सारथी जो था वो क्या था, ये एक बेसिकली ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें आप यूथ को बेसिकली सपोर्ट करेंगे, यूथ को, ठीक है। जो यूथ अभी जो रिसेंटली जो ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, इंटर पास करते हैं, तो वैसे जो यूथ है जो जिनके पास जॉब नहीं है उनको मोटिवेट करने का ये प्रोग्राम था सारथी। और ये कौन कौन से एरियाज में हुआ, मतलब ये बेसिकली विलेज एरियाज से आपके मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ में था। और यहाँ पर एक ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर के नाम से इन्होंने एक कुछ फैसिलिटीज दिया, यहाँ पर वो करियर चॉइस वगैरह कैसे कर सकते हैं, कौन से करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं, आगे चल के वो फ्यूचर में कहाँ पर कौन सा कोर्स करें, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स के लिए, यानी कि अगर हम बात करें कि कई बार जैसे हम भी अपने करियर में को लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं, बट स्टिल वी हैव रिसोर्सेज, बट जस्ट इमेजिन की रूरल एरियाज में आपके ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, वो वॉटी है, फिर आपके पास कोई बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है आपको, तो ऐसे केस में उन रूरल यूथ को बेसिकली मोटिवेट करना और उनकी हेल्प करना बाय हेल्प ऑफ ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर, वहां पर उनको कंसल्ट भी दिया था, ट्रेनिंग भी दिया जाता था, और साथ साथ में करियर आप कौन ऑप्ट कर सकते हैं उसकी भी बेसिकली फैसिलिटी आपको इसके अंडर में मिल रही थी, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रोग्राम्स थे जो स्टार्ट किए गए CSR प्रोजेक्ट अलग अलग कंपनीज के द्वारा, ठीक है। यस उत्सव। मैम लास्ट वाला क्या बोलिए, FRC? सारथी, सारथी इसको लाया गया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह, मतलब बेसिकली इसमें ट्रेनिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, ट्रेनिंग दिया जाता था यूथ को, ताकि आप कैसे करियर चॉइस कर सके, कौन सा ट्रेनिंग बेसिकली आप कहाँ से ट्रेनिंग, मतलब बेसिकली कह सकते हैं ना कि अगर आप कंफ्यूज हो तो यू विल गेट द ट्रेनिंग, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट द करियर, ठीक है, किस तरीके से कौन सी जॉब आप ले सकते हैं, कहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं, तो उन सब चीजों से रिलेटेड जो एक एडवाइस और एक ट्रेनिंग जो थी वो इसके अंडर में दिया जा रहा था। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें जो फर्स्ट, तो द फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द 5 कंपनीज जिन्होंने CSR प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो पहला जो था दैट इज ITC, ठीक है। सेकेंड जो था दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। थर्ड कौन था? HDFC, वेरी गुड। फोर्थ हीरो मोटोकॉर्प, एंड द फिफ्थ वन इज Tata Group. टाटा ग्रुप। तो ये कुछ 5 कंपनीज के बारे में हमने बात किया। जो सबसे पहला जो था ITC, उसके अंडर में हमने कौन से प्रोग्राम की बात की, कौन सा प्रोग्राम वहां पर शुरू किया गया था, विच प्रोग्राम वाज स्टार्टेड देयर? सर, वेरी गुड, मिशन सुनहरा कल। सेकंड जो था आपका सेकंड, और उसमें चौपाल सागर और ई चौपाल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ITC में। सेकेंड जो था महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके अंडर में कौन कौन से प्रोग्राम शुरू किए गए? महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंडर में कौन से प्रोग्राम शुरू किए गए? मैम हरियाली, महिंद्रा हरियाली, और वर्धा फार्मर फैमिली प्रोजेक्ट, और कृषि मित्र प्रोजेक्ट, कृषि मित्र प्रोजेक्ट, और एक और प्रोजेक्ट था दैट इज Integrated Water Integrated. ओके, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये 4 बेसिकली इनिशिएटिव था। तो वर्धा और मित्रा जो था लगभग उनका सेम टाइप का एम था, और इसमें हरियाली समझ में आप लोग को आ गया ही होगा, हरियाली एंड एक था IWMP। और नेक्स्ट उसके बाद आपका HDFC बैंक था। HDFC बैंक के अंडर में कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था? परिवर्तन प्रोजेक्ट। उसी में मैम आदर्श गांव अभियान को लिंक कर दिया लाइन अप किया। हाँ, आदर्श गांव जो प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम चल रहा था उसी के साथ उसको लाइन अप कर दिया गया, मतलब लगभग साथ में दोनों प्रोग्राम चल रहा था, दोनों का एम लगभग सेम था। बट जो ये जो था परिवर्तन जो था, ये पूरा का पूरा किसका था? HDFC का था। और जो नेक्स्ट जो था आदर्श गांव, दैट इज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो था हीरो मोटोकॉर्प, उनके द्वारा कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया?
Hero We Care. Hero We Care. Very good. Next प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था Tata आपका? Group. टाटा Tata ग्रुप। Group. कौन सा Transforming प्रोग्राम India. था? Transforming rural India. Transforming rural India. TRI good. मैम, ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद और- कौशल किसान अभियान, वेरी गुड, उसके बाद सारथी। वेरी गुड। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो थे, CSR प्रोजेक्ट्स जो थे, ये कंपनीज के द्वारा शुरू किया गया। अब इनमें क्या क्या चीजें थी, बेसिकली इन्होंने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिया, इन्होंने क्या क्या किया इस प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। तो इसको अच्छे से लर्न कर लिया। क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड ओके। तो क्वेश्चन आई गेस काफी दिनों से हम लोग का नहीं हो पाया MCQ। The question 1, what is the answer? Agricultural produce needs to be marketed quickly as it is a durable, perishable, can be stored, good shelf life. Raise your hand. Yes, Abhijit? Perishable. Piyush? मैम पेरिशेबल। Utsav? मैम पेरिसेबल। Priya? Perishable. Rohit? मैम पेरिशेबल। Abhishek? Ma'am, option B, perishable. Okay. And Rajat? मैम पेरिशेबल। Rohit? Ashutosh? मैम बी पेरिशेबल। Yes. The answer is B. Agricultural produce जो है उसको तुरंत से मार्केट में सेल कर देना चाहिए because majority of the products are the perishable. जैसे fruits, vegetables और grains भी जो है उनको एक particular condition में we can store, but as मतलब natural way में we can't store it for the long time, right? Next, the greatest problem in the rural market is, yes Utsav? मैम टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स। Next, Rajat? Rajat? हाँ मैम, मैम बी होगा। Next, Abhijit? To reach the customer and retailer. Next, Abhishek? And ma'am, option D. Piyush? मैम टू सेल द प्रोडक्ट। Rohit? मैम ऑप्शन डी। Ashutosh? मैम बी टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स। Okay. So basically जो आंसर होना है इसमें वो है to reach the customers and retailers, but comparatively अगर मैं बोलूँ तो प्रॉब्लम जो है ना ये सारे होने चाहिए, all of the work में आना चाहिए। प्रोडक्ट को सेल करना भी इज मेजर प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई कस्टमर को नीड करना दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम, रिसोर्स को मैनेज करना वो भी एक प्रॉब्लम है, साथ साथ कस्टमर रिटेलर्स को नहीं पहुंच पाना ये भी प्रॉब्लम है। लगभग प्रॉब्लम सारे हैं, बट द आंसर इज टू रीच द कस्टमर्स एंड रिटेलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is the one of the three major factor of the production in the classical economy and essential input for the housing and the food production. Yes, Utsav? मैम एक मिनट। Rajat? मैम लैंड। Piyush? मैम लैंड। Abhijit? Land. Abhishek? Water, ma'am. And next Akash? मैम लैंड होगा। ठीक है। So is the answer is land, because land is एक major factor है production का classical economy को देखें, और एक essential output है for housing and food production. ठीक है। Next, Hindustan Unilever project Shakti is meant for laborers, rural youth, rural women and farmers. Yes, Piyush? मैम रूरल यूथ। Abhijit? Rural women.
अभिषेक, Option C, ma'am. राजवी, Ma'am, rural women. ठीक है, तो द आंसर इज रूरल वुमेन। जो आंसर जो होगा एक्चुअल प्रोजेक्ट किसके लिए था, रूरल वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट शक्ति enables rural women in villages across India to nurture employability mindset, skill and confidence, independence and freedom and entrepreneurial mindset. Yes, Abhijit? Independence and freedom. Abhishek? मैम सारे ही ऑप्शन, लेकिन अभी इसके हिसाब से तो ऑप्शन सी। Priya? Ma'am, independence and freedom. Yes. Ashutosh? Ma'am, all of the above. ठीक है, तो आंसर जो होगा बेसिकली, अभी टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं सारे बच्चों को एंटरटेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आंसर जो इसका होगा वो होगा, कोशिश कीजिए सारे बच्चे पहले हैंड रेज करने का, ठीक है। तो द आंसर इसका जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, बट द आंसर इज ऑल बेसिकली एम्प्लॉयबिलिटी माइंडसेट, कि हर एक लोग को एम्प्लॉय बेसिकली जॉब करना चाहिए, स्किल एंड कॉन्फिडेंस, बिल्कुल नॉलेजेबल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए पॉजिटिवली, साथ साथ में एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, यानी कि आप अपना बिजनेस खुद शुरू कर सकते हैं। तो काइंडली इसमें एक्चुअल में सब कुछ ही होगा, लेकिन जो आंसर अभी होगा दैट इज इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, बिकॉज वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन फॉर द आवर लाइवलीहुड, वुमेन के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most important role of hearts in village, contact point for villagers, means for distribution, trading for the local product and exchange, rural surplus, an opportunity for buying the daily necessities, a place for political, social and cultural contact? What is the answer? Yes, Piyush? Ma'am, option B. Next, Utsav? Ma'am, option B means for distribution and trading of local Roger? products. मैम शायद बी होगा, मींस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ ट्रेड। Rajvi? Ma'am, option C, an opportunity for buying daily necessities. Next, Abhishek? ऑप्शन बी मैम। The answer is option B. That is of hearts जो होते हैं, जो बेसिकली एक तरीके से आप देखोगे दिल्ली वगैरह में जो हार्ट्स है, दिल्ली हार्ट्स वगैरह, वहां पर आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रूरल एरियाज में तो चलो डेली नेसेसिटीज वाले मिल जाएंगे, बट ज्यादातर वहां पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, ट्रेडिंग वगैरह लोकल प्रोडक्ट का, और किस तरीके से रूरल सरप्लस का हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हार्ट्स को यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ITC e-Chopal is known as world's largest bazaar, world's largest farmer network, world's largest rural digital infrastructure, world's largest farmers bank. Yes, Piyush? World largest bazaar. Abhijit? World largest rural digital infrastructure. Utsav? Ma'am, world's largest farmer network. B. Rohit? ऑप्शन बी मैम। Priya? Ma'am, world's largest farmers network. Next, Akash? मैम बी। So the ITC e-Chopal जो है, that is basically known for the world largest rural digital infrastructure, but for the farmers, ठीक है, फार्मर नेटवर्क में हेल्प करता है, लेकिन द आंसर विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन एक मिनट, अच्छा इसमें इन्होंने फार्मर्स और रूरल एरियाज का बात नहीं किया, तो आंसर विल बी बी, आंसर बी होगा आपका, बी। अच्छा, रूरल की बात की तो है इन्होंने, एक भी बच्चा बोल भी नहीं रहा है कि मैम इसमें बात हुई है, तो आंसर बी नहीं होगा, आंसर सी होगा था। मुझे लगा सिर्फ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आंसर विल बी सी, सी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज यहाँ पर यू विल गेट द, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, साथ साथ में कंसल्ट भी कर सकते हो, एडवाइस भी ले सकते हो, ठीक है। कियोस्क आर द प्रेजेंट एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह उनको क्या क्या गया रूरल एरियाज में प्रोवाइड किया गया, सो द नेटवर्किंग इज देयर, बट द आंसर विल बी सी, ठीक है, आंसर इज सी। आई थॉट देयर इज नो रूरल इज मेंशन, बट द रूरल इज मेंशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो इन जो क्वेश्चंस जो बच गए हैं, ओके, सो